శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியினின்று நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையின் கண்டு அனுபவிக்கும் பக்தர்களையும் இன்று மங்கள பிறந்த நாள்களை கொண்டாடும் சிறார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இனிய ஆசிகளை வழங்கி கோவலனாய் ஆனிரைகள் மேய்த்து குழலூதி மாவலனாய் கீண்ட மணிவண்ணனான திருமலையப்பனின் திருவடியிணைகளில் பணிந்து பிரார்த்தித்து வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் அடியார்களை இரு கரங்களை கூப்பி வரவேற்கின்றது. பகவானுக்கு பக்தர்களிடத்தே உள்ள ஆசையை வாத்சல்யம் என்னும் குணத்தை குறித்து சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ சரணாகதி தீபிகா எனும் ஸ்லோகத் தொகுப்பில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தாலே விவரித்து அருளியுள்ளார். தியாகே குணேஷ
శరణాగత సంజినోమి సత్యారాగ సోపి సగసైవ పరిగ్రహావ కిం నామ కుత్ర భవతీతి கிருபாதிபிஹிதே கூடம் நிரூபய குணோதர தாரதமியம் என்கிறார். மேலே இவ்விடத்தில் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி இங்கே எழுந்தருளி இவர்களுக்கு உரிய திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்னேற்பாடாக வைகானச ஆகம முறைப்படி விஸ்வக்சேன ஆராதனை புண்ணியாக வச்சனம் முதலிய கிரமங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதை சற்று சேவிப்போம். பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே யஸ்யத்வரத வக்த்ராத்யா பாரிஷத்யா பரஷதம் விக்னம் நிக்னந்தி சதரம் விஸ்வக்சேனம் தவாஸ்ரயே. ஓம் பகவதோ பலேனா பகவதோ வீர்யேனா பகவதஸ்தேஜசா பகவத கர்மணா பகவதானுகృహేతో భగవదానుధ్యాతో భగవన్ ధ్యాత్వా భగవత్ కర్మ కరిష్యామి తత్ భగవాన్ నమన్యదాం ప్రాణానాయమ్యా. ఓం భూః अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिण्यकर्मणि स्तण्डिलपरिदेपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यं कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यं तरंगं करकाराधनं करिष्ये. ओम धाराचुरप्तशनमानशेषरात्रिच परिपूरितेष अपोविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गृणोमि दत्तागं सुदृगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शतमृणये सहस्रं यज्ञया पाधावितना पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविट्टर् विश्वे देवामन्यन् मरुतस्वस्या. अस्मिन् कुम्भे ओम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रचेतसे नमः. रक्ताम्बरधराय नमः. यादस्पतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहटिकृसमन्वितं जयावतं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत्. आग्नेयस्माद्रामहे त्वा विश्वेशदात्तं महितो न शम्भो वैराजन्ते सदनिधत्तां प्रेष्याम देशो विपधानाम नादर्यामे सस्तान्दनितान् दधात्. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि. सूत्रपदेरिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. शान्ताय नमः. हराय नमः. अमिताय नमः. नित्यानुभाजने नमः. सूत्रवत्ये नमः. जिगाये नमः. सूत्रपदेरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोवा अदाभ्यः. ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे. इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे. विष्णोर्यत्रमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः. यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्भक्कुर्वेदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते. ओम भूः भूर्भुवस्वरं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त् पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु. स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्.
పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతో కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి హృద్యాస్మ హవ్యేర్నమసోపసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నాస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః సితంజీవేమ సరతస్సమీరాః ఓం భూః పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తమానాయ పుణ్యాహం రుద్ధిం భవంతో భ్రవంతో కర్మరుధ్యతాం 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 రుద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాదన మహేరణ యదిక్షసే యో వశ్యవతమోరసస్తస్య భార్యతే హనః ఉషతీరిమ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయా జన్మథ ఆపో జనయథా జనః పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యః పోతా సపునాతమా పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనబోధియ పునంతు విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రవదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే కృత్వా కృతో కుమ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చసి అగ్నే వితనమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునదీ దేవ్యాగాత్ యస్యై వక్వే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తయా మదంతస్స నమార్యేష్ వజగ్దుస్యా భవతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ వాతః ప్రాణీనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః హర్తావరీ జిగ్నయే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షయే పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं सर्वगुं सबूतमस्यादे सुजितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि पयस्वतेः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यां पितरो मार्जगिन्ताम् प्रतीत्यां पशवो मार्जगिन्ताम् उदेत्यां दिश्या पवोषतयो वनस्पतयो मार्जगिन्ताम् ऊर्ध्वायां दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगिन्तामाधो यज्ञपतिर्मार्जगिन्तामतो धराधरेर्नायेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्य दिवेत शोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यर्यस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वति धर्मणा नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां पक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च समानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சுவாமி தேசிகன் அருளிய சரணாகதி தீபிகையிலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சேவித்தோம் அல்லவா? தியாகே குணேஷ சரணாகத சங்கினோமே சத்யாநாக சோபி சகசைவ பரிகிரகாவா கிம் நாம குத்திர பவதீதி கிருபாதிபிஹிதே கூடம் நிரூபய குணோதர தாரதமியம் என்று சாதித்து அருளியுள்ளார். அதாவது பக்தர்கள் தாங்கள் அறியாது செய்த தவற்றை அதை உணர்ந்த அடியார்கள் பகவானை தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு சரண் அடைகின்றனர். கருணை, தயை, வாத்சல்யம் போன்ற குணங்கள் நிறைந்த பகவான் கைவிடாது பக்தர்களை கை கொடுத்து காப்பாற்றுகின்றான் தாயாரின் சிபாரிசினாலே.
இவனிடத்திலே உள்ள அனந்த கல்யாண குணங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றை ஒன்று விஞ்சி பிரகாசிக்கின்றன. அதுவும் தாயாரின் அனுகிரகத்தாலே, தாயாரின் சிபாரிசினாலே. ஒரு தாய்க்கு குழந்தையிடம் ஏற்படும் அன்பும் பாசமும் தாய் பசுவிற்கு தான் ஈன்ற கன்றிடம் ஏற்படும் பாசமும் வாத்சல்யம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்விடத்தில் திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்பு பாலிகையில் அந்த புண்ணியாவச்சன தீர்த்தத்தை சேர்த்து பாலிகை மங்களத்தை உண்டாக்குகின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான அனைத்து கிரமங்களும் வைகானச ஆகம முறைப்படி பின்பற்றி அவற்றை நடத்தேறி கொண்டிருக்கின்றார். இப்பொழுது எம்பெருமானின் பரிவு அன்பு பக்தர்களிடத்தே எவ்வாறு பாய்கின்றது என்பதை சற்று தாயாரின் துணையோடு இருவர் சேர்த்தியிலே தான் நம்முடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறும் என்பதை எவ்வாறு உணர்த்துகின்றார் என்பதை சற்று பார்ப்போம். தாயை அறியாத கன்றில்லை, தன் கன்றை தாய் பசுவும் அடையாளம் காட்டும் ஸ்ரீ பகவானுடைய பக்தவத்சலத்துவம் இதிகாச புராணங்களில் பறக்க கூறப்பட்டுள்ளது, அனைவரும் அறிந்ததே. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹிருதய ஸ்லோகத் தொகுப்பில் யதாஹி புத்திர வாத்சல்யாத் ஜனனி பிரஸ்னு தஸ்தனி வத்சம் த்வரிதம் ஆகத்ய சம்பிரீணயதி வத்சல. யதாஹி புத்திர வாத்சல்யாத் ஜனனி பிரஸ்னுதஸ்தனி வத்சம் த்வரிதம் ஆகத்ய சம்பிரீணயதி வத்சல. யதி ஸ்யாத் தவ புத்ரோஹம் மாதா த்வம் யதி மாமகி தயா பயோதர தன்ய சுதாபிகி அபிஷிஞ்சமாம் என்கிறது. அதாவது ஜெகன்மாதாவான சாட்சா ஸ்ரீ பத்மாவதி மகாலட்சுமியின் கிருபையை இன்றி ஜீவர்கள் ஒரு க்ஷணங்கூட வாழ இயலாது. அழும் குழந்தை பசியால் தான் அழிகிறது என்று உணர்ந்த தாயார் புத்திர வாத்சல்யத்தாலே பசியை தீர்க்குமா போலே தாயாரும் ஓடோடி வந்து அடியார்களை காக்க வேண்டும், அதுவும் பகவானின் துணையோடு. மேலே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு ஹோம குண்டம் அனைத்தும் இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். அதை சேவித்து மேலே ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிர்யோஜோ ஹிடானிர்விபுதா விராஜன்னே சம்மயதோஷாயஸ்யானராக்னம் விபணானிபதந்த். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்ராதிஷ்டானதேவதாभ्यो நமः. சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, ஆஜமனீயம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. ரக்ஷாசூத்ரதேவதாभ्यो நமः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. भगस्वस्ति देव्यतेतर निर्वणाः स्वस्ति भूषा असुरोधराधर स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्नादाय नदा संगामे महे स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यं प्रियादमानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिजं बाधेष्वभायन्न अस्ते शुभागं शुभाम्. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அதற்கு முன்பு அதற்கு தேவையான அனைத்து கிரமங்களும், அதாவது வைகானச ஆகம முறைப்படி கிரமங்களோடு எம்பெருமான் திருமுன்பாக அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து பெருமானுக்கும் பின்பு பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை சற்று சேவித்து கொண்டே இப்பொழுது சுவாமி தேசிகனின் அந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்தை சற்று அனுபவிப்போம். ஜெகன்மாதாவான சாட்சா ஸ்ரீ பத்மாவதி மகாலட்சுமியின் கிருப்பையின்றி ஜீவர்கள் ஒரு க்ஷணங்கூட வாழ இயலாது. அழும் குழந்தை பசியால் தான் அழிகிறது என்று உணர்ந்த தாயார் புத்திர வாத்சல்யத்தாலே பசியை தீர்க்குமா போலே தாயாரும் மூடோடி வந்து அடியார்களை காக்க வேண்டும். காக்க வேண்டும் என்றால் என்ன? எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே அவர்களை சேர்ப்பித்து, அதாவது அவர்களை காண்பித்து கொடுத்து அவர்களின் குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டி செய்து இருவருமாக சேர்ந்துத்தான் அந்த பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும். எனவே தாயாரால் முடியும். ஆனால் தன்னுடைய கணவனின்றி, அதாவது இவர் பெருமானை அன்றி இவள் ஒரு காரியம் செய்ய மாட்டாள். முடியும், ஆனால் அவனின்றி துணையோடு தான் செய்து கொண்டு அருள்வாள். அதுவே முறை என்று
அனைத்து இதிகாச சமுச்சயத்திலும் இதிகாச புராணங்களாலும் நாம் நன்றாக அறிந்து உள்ளோம். தயை என்னும் அமிர்தத்தை பக்தர்கள் மேல் பொழிந்து ரட்சிக்க வேணும் இந்த தாயார், அதாவது திவ்ய தம்பதிகள். தாயாரின் சிபாரிசினோடு எம்பெருமானும் சேர்ந்து நமக்கு ரட்சிக்க வேண்டும். அதுவே முறை, அதுவே நீடு நின்று நிலை பெற்ற நல்ல பலன்களாக நாம் பெற்று அனுபவிக்க இயலும். கணந்தோறும் அபராதங்களையே செய்து வரும் அடியார்களை காக்கும் திவ்ய தம்பதிகள் மன்னித்து அவர்கள் பால் அன்பை காட்ட வேண்டும். நம்பால், அதாவது அவர்கள் பால் என்றால் பக்தர்கள் பால் மன்னிப்பு வேண்டும். பக்தர்கள் பால் நன்றாக அருளை காட்ட வேண்டும். சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாசத் எனும் ஸ்லோக தொகுப்பில் ஜானன்னு நநாதி விகிதானு அபராது வர்கானு சுவாமின் பயாத் கிமபி வக்துமஹம் ந சக்தः அவ்யாஜவத்சல ததாபி நிரங்குசம் மாம் வாத்சல்யமேவ பவதோ முகரீகரோதி ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாசத்தில் சாதித்து அருளியுள்ளார். அதாவது சர்வே, இந்த எம்பெருமானான கோவிந்தன் சர்வேஸ்வரன் பக்தர்களிடத்தை இயற்கையாகவே அன்பு கொண்டவன்தான். ஆகையரே பக்தர்களின் குற்றங்களை புறக்கணித்து வாத்சல்யத்தோடு அவர்களை அனுகிரகிக்கும் குணத்தாலே இருக்கிறான். எனினும் தங்கள் குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும். அதை அவன் எதிர்பார்க்கிறான். பகவானை நெருங்க பயமற்றதாய் இருக்கின்றது. இப்பொழுது கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானுக்கு. இந்த அன்புதான் கங்கணம். எதற்காக இந்த கங்கணம்? ஒவ்வொரு முறையும் அடியன் இவ்விடத்தில் சொல்லுவது, பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று தான் ரட்சை கட்டி கொண்டிருக்கிறான். கற்றை கொண்டு கற்றை கட்டி கொண்டிருக்கிறான். பக்தர்களை காத்துத்தான் தீர வேண்டும் என்று. அதற்காகவே தசாவதாரங்கள் போராது என்றது திருமலையிலே எழுந்தருளியிருக்கிறான் அர்ச்சா மூர்த்தியாக. இந்த கற்றை பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும். இந்த கற்றையை, அதாவது இந்த ரட்சையை கட்டி கொண்டிருக்கிறான். அர்ச்சக சுவாமியும் நம் பொருட்டு அவன் திருவடிவாரத்திலே பிரார்த்தித்து, சிரம் தாழ்த்தி பிரார்த்தித்து அனுகிரகிக்க வேண்டும். எனவே நாம் இவனை நெருங்க பயமற்றதாக இருக்கிறது. இந்த அன்புதான் அடியார்களின் குற்றங்களை கணிசியாது அனுகிரகிக்க ஹேத்துவாகிறது. பகவானுக்குள்ள இயற்கையான வாத்சல்ய குணம்தான் பக்தர்களை உஜ்ஜீவிக்க செய்கிறது. ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேஹே விஷ்ணோஹோ பராம் பிரேயசீம் தத் வத்சல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்த்தனீம் பத்மாலங்கிருத பாணிபல்லவயுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம் என்கிறது. அனைவரும் கேட்டிருக்கலாம் இந்த சுப்பிரபாதத்திலே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் தியான ஸ்லோகத்திலும் உள்ளது. அதைதான் இந்த சுப்பிரபாதத்தில் எடுத்து ஆண்டிருக்கிறார்கள். அர்த்தத்தை கூறும் பொழுது, குற்றங்கள் புரிந்திடும் பக்தர்கள் பகவானின் சரணாரவிந்தர்களை பற்றினால் நிச்சயம் திவ்ய தம்பதிகள் அனுகிரகித்தே திருவார்கள். அதுவே இங்கே அந்த கங்கணத்தை கட்டி நமக்கு சூச்சிப்பித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கங்கணம் கட்டுவது என்றால் என்ன? கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு ஒரு காரியத்தில் இறங்கிறோம் அல்லவா? நமக்கே லௌகீகமாக சொல்வார்கள் எல்லாம். ஒரு காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் என்றால், கல்யாண காரியம் முடிக்க வேண்டும் என்றால் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு எவ்வாறாயினும் கடனை வாங்கியாவது அந்த குழந்தையின் கல்யாணத்தை முடித்தே தீர வேண்டும் என்று தாய் தந்தையர்கள், தகப்பன்மார்கள் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா? அதை போலதான் இந்த திவ்ய தம்பதிகளும் கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டு பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதை இவர்களின் கங்கணம். அதுவே ரட்சை. அதுவே நமக்கு ரட்சையாக அமைகிறது. அதுவே அந்த அனுகிரகித்த தீர்வார்கள். அனுகிரகித்தும் நாம் பெற வேண்டும். ஸ்ரீதேவியின் இருப்பிடமோ ஸ்ரீ கோவிந்தனின் திருமார்பு அல்லவா? அவனை கடைக்கண்களால் நோக்கி அடியார்கள் வாழ் உள்ள சீற்றத்தை தணித்து அவர்கள் மீது அன்பு வாத்சல்யத்தை பொழியுமாறு செய்கின்றாள் இந்த தாயார். இந்த புருஷகார பூத்தையான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கோவிந்தனின் சரணாகத வத்சலன் என்றால் அந்த வத்சலத்துவத்தை நமக்கு பெற்றுத்தருகின்ற தாயார். அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயாரோ சரணாகத வத்சலா நகச்சின்ன பராத்தியதி என்று பகவானை சமாதானப்படுத்தி பக்தர்கள் பக்கலிலே இறங்கச் செய்கின்றாள். இந்த திவ்ய தம்பதிகளை சரண் அடைந்து பக்தர்கள் ஸ்ரீ சரண்யனின் கிருபைக்கு பாத்திரமாகி வேண்டியவற்றை நன்றாக பெற வேண்டும், நன்றாக வாழ்ச்சியும் பெற வேண்டும். எப்பேற்பட்ட பகவான் நதே ரூபம் நச்சாகாரோ ந ஆயுதானி ந சாஸ்பதம் ததாபி புருஷாகாரோ பக்தானாம் துவம் பிரகாசசே என்கிறான். இப்படித்தான் இந்த அர்ச்சை திருமேனியும் நன்றாக சேவிக்கலாம். இதை காண முடியாதவர்கள் கூட மனமுவந்து மனத்தாலே அவனை தியானித்து ஏதோ ஒரு உருவத்தை, இல்லை ஒரு மஞ்சளையான பிடித்து வைத்து அதை அவன் ரூபத்தை கண்டு நன்றாக வேண்டிக் கொள்ளலாம். இதுதான் வேண்டும் என்று இல்லை. அவனுக்கு வேண்டியது பக்தி. அவனை நினைக்க வேண்டும், அவனை நினைத்து பெற வேண்டும். அது மட்டுமே அவன் வேண்டுகின்றான். பகவானுடைய திவ்ய திருமேனி பக்தர்கள் கண்டு அனுபவித்து புஜிப்பதற்காக அவனை உபாயமாக பற்றி சம்சார கடலிலே பக்தர்கள் தாங்கள் அனுபவிக்கும் துன்பத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காகவே இவன் எழுந்தருளியுள்ளான்.
இடந்துகள் பொருள்தரும் கரந்தெங்கும் பறந்துளன் இவன் என்கிறபடியே எங்கும் மொழிவர நிறைந்திருக்கின்றான் இந்த கோபாலன். ராமகிருஷ்ணா அவதாரங்கள் கூட பக்தர்களின் ரட்சணத்திற்காகவும் அவர்கள் விரும்பியவாறே எம்பெருமானும் ரூபங்களை ஏற்று அவதரினான். இவ்வாறேதான் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் இரண்யகசிபு அப்படி வேண்டியது கூட அது அவ்வாறே தானே. சிம்மமாகவும் நரனாகவும் கலந்துதானே அவன் அவதரித்தான். எப்படி அவன் விரோதியாக இருந்தாலும் அவன் எப்படி வேண்டுகிறானோ அவ்வாறே அனுகிரகித்து அவதாரத்தை செய்கிறான். மேலே அர்ச்சக சுவாமி இவ்விடத்தில் திருக்கல்யாணத்திற்கு உண்டான ஹோமகுண்டத்தை இங்கே அக்னியை பிரவேசிக்க செய்கின்றார். அதை சற்று சேவித்து வேதகோஷத்தை கண்டு கழிப்போம், கேட்டு ரசிப்போம். वैवाहिक महोत्सवाकिंकर्मणि औपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्य सोम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्राणि दाशुरे शुद्धो वाजं शरासरे मय देवाद्रवणमाजिदन्तां मय्यासीरस्तु मय देवहूतिः देव्या होतारावणिहन्त पूर्वेरिष्टा स्यामधर्मा सुवीराः मह्यं जयन्तमवयानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजतामे देवी षडर्वेर्नक्नोत विश्वे देवास यहवीर्यर्थं महास्महे प्रतिगामातनोभिर्मारद्धामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेत यः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्रद्धान्यहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ते घृतं पिबन् श्रीजाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्तुरुचो वेनावः समुद्रया उपमा अस्य विष्टासतश्च योनमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराज तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेन मानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेन मानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वाजुभूते स्तो विष्णोर्मनधाभूते स्तो जिग्नस्य पावनेस्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपनात् तच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्रे गुवोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणेष्यामि गिरमानवाजं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेन मानोऽस्ते सप्तर्षीणागं स्फुटां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोपप्रणितसमप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपास्पृश्य श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तुनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे नोवामि ब्रह्मणेष्टनोवामि इंद्राकृष्टनोवामि अग्नेयष्टनोवामि सोमाकृष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोवामि प्रजापतेष्टनोवामि ब्रह्मणेष्टनोवामि इंद्राकृष्टनोवामि वसुभ्योष्टनोवामि मरुद्भ्योष्टनोवामि रुद्रेभ्योष्टनोवामि आपावोपास्पृश्य श्री महाविष्णुवेष्टनोवामि बृहत्त्रयेष्टनोवामि मित्राकृष्टनोवामि वरुणाकृष्टनोवामि आदित्येभ्योष्टनोवामि अस्भ्याष्टनोवामि पुष्णेष्टनोवामि कक्षाकृष्टनोवामि कक्षदेवता सोमाकृष्टनोवामि उपासनयज्ञाकृष्टनोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो
जुष्टु निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टु निर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि तिरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं वृक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं वृक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा भ्यर्च्या अक्षता आज्य सुरुभिः यमामि अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पणं च निर्पणं च समत्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च यमामि अग्निष्टगाधेन वसन्त नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदरे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा षष्टिशतसहस्रान्नियतमक्षयमर्पणमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तयदास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपापूपास्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतो सोमाय स्वाहा औपाधन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतो विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवतविदप्रासावेः ओम भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चक्रमणे औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषत्वैष्टभौमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसृजतो प्रदानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरातनग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः करी अन्योन्यमु चूडरे ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకల
సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః ముష్కయోర్దదాత్సవం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సపః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాకూతిం వాచः సత్యమశీమహి రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహినం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तमोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रभरामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिरे अमरावते तेजोवते संयमने रक्षोवते सिन्धुवते गन्धवत्यनकावते यशोवतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोकाचलबलहिते रमणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वेपद्वेपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरवणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेत क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहि तथा मातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं गतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासतीत्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजिबीजपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण
नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानसारविर्भृक्पादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुहेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य बाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायनीं भार्गवस्य मन आप्नवान उर्ववेदनमञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधचेत् प्रयुतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। இப்பொழுது எம்பெருமான் திருவடி வாரத்திலே திருமங்கல்யத்தை இருக்கச் செய்து, அதாவது சமர்ப்பித்து அதற்குரிய ஷோடச உபசாரங்களை எம்பெருமான் திருமுன்பாக நடத்தி ஏறி மேலே இந்த திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. இப்பொழுது இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் கருணா கடாட்ச விலாசம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்ப்போம். இடந்துகள் பொருள்தொறும் கரந்தெங்கும் பரந்துடன் என்கிறபடியே எங்கும் மொழிவர நிறைந்திருக்கின்றான் கோபாலன். ராமகிருஷ்ணாத் அவதாரங்கள் கூட பக்தர்களின் ரட்சணத்திற்காகவும் அவர்கள் விரும்பியவாறே எம்பெருமானும் ரூபங்களை ஏற்று அவதரித்தருளினான் என்பதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. கோலார்ந்த நெடுஞ்சார்ங்கம் கோனர் சங்கம் கொலையாழி கொடுந்தண்டு கொற்ற உள்வாள் என்கிறபடியே சங்கம் சக்கரம் போன்ற திவ்யாயுதங்களை உடையவனாய் சேஷாசனத்திலே எழுந்தருளி இருந்து திவ்ய திருமேனியுடன் பக்தர்களின் தியானம் செய்வதற்கு ஏற்றதாயும் பக்தர்களின் விரோதிகளான ராட்சசாதிகளை அவதாரம் தோறும் நாசம் செய்து பக்தர்களை ரட்சிக்கவுமே அவதார ரூபங்களை பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி எடுத்தது ஆகிறது. ஆறாவார் துணை என்று துக்கித்து மனம் விதும்பும் பக்தர்களை ரட்சிக்க எவ்வித ரூபமும் எடுக்க வல்லவனாக திகழ்கின்றான் தாமோதர கோவிந்தன். மேலும் இந்த கருத்தை ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் முதல் திருவந்தாதியில் தமருகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே தமருகந்தது எப்பேர் மற்ற பேர்
தமருகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாதிருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியானாம் என்கு சாதித்து அருளியுள்ளார் ஒரு பாசுரத்தில். இப்பொழுது திருமுன்பு திருமாங்கல்யத்தை ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்தை அவ்விடத்திலே எம்பெருமான் திருவடி முன்பு சமர்ப்பித்து அதற்கு உரிய ஷோடச உபசாரங்களை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். மந்திர கோஷங்களோடு பகவானுடைய அர்ச்சை திருமேனி அர்ச்சகர் பராதீனமாக உள்ளது. இப்பொழுது அர்ச்சகர் என்ன செய்கின்றாரோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவ்விதமே பக்தர்களின் பொருட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்களை ரட்சிக்க எவ்வளவு அழகாக நின்று கொண்டிருக்கின்றான். அவ்வுருவத்தை உடனே இவன் எழுத்தாகிவிடும். பக்தர்களை விரும்பி தொழும் திருநாமம் எதுவோ அந்த திருநாமமே ஏற்றுக்கொள்வான். இப்பொழுது பக்தர்கள் விரும்பி பகவானின் எந்தெந்த குணங்களில் ஈடுபட்டு சிந்தனையில் லயித்து விடுகின்றார்களோ அந்தந்த குணங்களாகவே தாமோதரன் விளங்குவான். இப்பொழுது நாம் என்ன வேண்டுகின்றோமோ அதை நிச்சயமாக தந்தருள்வான். யசோதை கயிறு கட்டியதாலே தானே வயிறு சுற்றி தழும்பேறியது. தழும்பேறிய வயிற்றை உடையவன் தாமோதரன் என்று திருவநாமத்தை உகந்து ஏற்றான் அல்லவா? அதை போல நாம் எவ்வாறு மனம் உவந்து எந்த திருநாமத்திலே நாம் அழைக்கிறோமோ அந்த திருநாமத்திலே வந்து உதிப்பான். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் மேலே மேலே பக்தர்கள் விரும்பும்படியாகவே கொண்டாடி கொண்டு அவர்கள் எப்படி தன்னை நோக்கி வருகிறார்கள். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இவன் எதிர்பார்ப்பது பக்தர்கள் தான் திருந்தி விட்டதாம், இனி தவறு செய்ய மாட்டோம் என்று மனம் உவந்து அவனிடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும். அதை மட்டுமே அவன் எதிர்பார்க்கிறான். கல்யாண குணக்கடலாய் திகழ்ந்து கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கிறான் இந்த பகவான். மதுசூதன கண்ணனான கோபாலனை மகாந்தம் என்று வேதம் போற்றுகிறது. பகவான் சோதி வடிவானவன். பகவான் முடிச்சோதியாயும் முகச்சோதியாயும் திருமார்பினின் பொன்மேனியோடும் கூடிய திருவை உடையவனாகவும் பக்தர்கள் கண்டு துழும்படியாக உள்ள அடிச்சோதியும் இவன் திருவலக்கரத்தில் உரையும் சுடராழி சோதியும் என்று எல்லாவித சோபையுடனும் அமிர்த மதனத்தின் போது அதாவது சோதி வடிவாக தோன்றுகின்றான். அனைத்துக்கும் அனுகிரகம் கூட நன்றாக வெட்ட வெளிச்சமாக பகவான் நன்றாக வேண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பதில் நன்றாக தோன்றுகின்றான். வெளிச்சமாக நன்றாக கண்கூடாக நாம் கண்டு கழிக்கலாம்படி எழுந்தருளியிருக்கிறான். நாபச்சயன்யகம் திசக க்ஷோணிம் ஆத்மானம் ச குதோ விபும் என்று தேவர்களுக்கு இவனை காண இயலாமல் கண்கூசி போவது போல அத்தனை ஜோதி வடிவாக இருக்கின்றான். இப்பொழுது திருமாங்கல்யத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பார்க்கும்படியாக கண்டு கழிக்கும்படியாக இந்த அர்ச்சக சுவாமி தரிசனத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. அதை நன்றாக சேவித்து பக்தர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனையை சமர்ப்பித்து வேண்டுவதை பெறலாம். பிரஜாபதிஸ்ஸோ மகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதாம். ஸ்ரீதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. பிரஜாபதிஸ்ஸோ மகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా.
समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि उपासनाग्नौ प्रधान होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुभ अग्निरेतु प्रथमो देवता नागंसो अस्य प्रजामञ्चतमृत्य भाषात् तथैकं राजा वृणो न मञ्जदां चिथैक स्त्री पौत्रं कण्डरोधात् स्वाहा इमं मे वृणस्तुति हममत्याचमृया त्वामवस्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेनमानो वरणे हवोदृशकं समान आज प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासटिष्ठाः यजुष्टो बन्धिनमस्सोषुडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्पन्नो अग्ने वमो भवोते नेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकं रदानो वेहमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन मनसाहितः अयासन हव्यमुहिडे यानो देहिभिषड्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन ममग्रस्थाः अनुमतेन ममग्रस्थाः सरस्वतेन ममग्रस्थाः देवसमिदप्रासावेः श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभ इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वावुतत्वजा वयं धारावुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन ममग्रस्थाः अनुमतेन ममग्रस्थाः सरस्वतेन ममग्रस्थाः देवसमिदप्रासावेः श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टम होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभ ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदापिचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विशदयतो वृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन ममग्रस्थाः अनुमतेन ममग्रस्थाः सरस्वतेन ममग्रस्थाः देवसमिदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिदप्रसुभ ॐ यतस्य कर्मणोत्यरेतजं यद्वान्योनिमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतित्वान् सर्वगुस्तिष्टकं सुहृदङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृदहुताहुतेराङ्कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो
देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्वायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषणन्तरिच्यै स्वाहा कृत्यै स्वाहा दौराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येदजेमहि स्वाहा समितसितेजो मयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्पा सप्तर्षगे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ते सप्तयोनीरा पुनर्त्वा घृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं जोर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं जोर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्तां परिहरविना कृतेन समादित्यैर्विश्वमरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिर्हुङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा आद्यशेषं इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निवोम अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावेः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसे पवित्रं मे पूजात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णं मे पूजात् स्वाहा सर्वसिद्धे पूजात् स्वाहा सर्वमसे सर्वं मे पूजात् स्वाहा अक्षितभक्तित्वे होमि अक्षितमसे स्वाहा ग्रम्बचो अपावधें त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्माजी परमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसे दक्षिणतो विष्णोः सदनमसे उत्तरतो विष्णोः सदनमसे सर्वानन्यान् प्रथमोऽप्याग्रन्थेन विस्तृत्यार्घ्यप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्भदे नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने तस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरनाय चक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षजा जजिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं प्रत्यहीनं यकृतन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्गणं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु
இப்பொழுது திருமங்கலதரணம் ஆன பிற்பாடு சேர்த்திலே இருக்கப் போகிறார்கள். இப்பொழுது திருமண மக்கள், அதாவது திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும் அந்த கிரியை இவ்விடத்திலே அர்ச்சக சுவாமிகள் நமக்கு செய்து காட்ட இருக்கின்றார். வரம் தரும் வரதனாக கோபால கோவிந்தனின் எழிலை கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அல்லது இந்த கலியுகத்தில் கலியுக தெய்வமாக அர்ச்சை திருமேனியோடு எழில் கொஞ்சும் அழகோடும் அடியார்களை வசீகரணம் செய்து தன்பால் தன் திருவடி கீழ் அமர்த்தும் அந்த அகடித்த கட்டனான சாமர்த்தியத்தை கிருஷ்ணாவதாரத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த அர்ச்சை திருமேனியான இந்த கோவிந்தனிடத்திலும் நாம் நன்றாக காணலாம் என்று சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரி மகாத்மியம் எனும் ஸ்லோகத் தொகுப்பில் கிரீட கேயூர ரத்னகுண்டலம் பிரலம்ப முக்தாமணி ஹேமபூஷிதம் விஷால வக்ஷஸ்தல சோபி கௌஸ்துபம் ஸ்ரீய சதே வியாத்யுச்சீததோரு விக்கிரகம் பிரதப்தசாமீகர சாருவாசசம் சுமேகலாநூபுர சோபிதாங்கிரிகம் சுவர்த்துனீ ஜாத மிருணாளகோமலம் ததா நமச்சவி யஜ்ஞசூத்திரகம் புஜோபதானம் பிருசுருதான்யஹஸ்தம் நிகுஞ்சிதோத்தானித பாதயுக்மம் சுதீர்கமூர்வம் சமுத்கிரக வேஷம் புஜங்கதல்பம் புருஷம் ததர்ஷக என்று ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் அவன் அணிந்திருக்கும் அந்த திருமேனி சோபையை நன்றாக எடுத்தருளியுள்ளார் இந்த ஸ்லோகத்தாலே. இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் மாலை மாற்றும்படியான இந்த மங்கள காரியங்கள் நடந்து இருக்கின்றன. பிராட்டி ஸ்ரீதேவிக்கு சாற்றியருளிய அந்த திருமாலையை எம்பெருமானுக்கும், எம்பெருமான் மறுபடியும் அதை பிராட்டிக்கே சமர்ப்பித்து இதை மாலை மாற்றும் முறையாக இவ்விடத்தில் செய்து காட்டி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானின் திருமடி முதல் திருவடி வரை உள்ள அத்தனை அழகுகளையும் சமுதாய சோபையை சுவாமி வர்ணித்து உள்ளார். புருஷோத்தமனான எம்பெருமான் கிரீடம், தோள்வளைகள், ரத்ன குண்டலங்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து கொண்டும் விஷாலமான தாயாரை ஏந்தி கொண்டிருக்கும் திருமார்வில் தூங்கும் திருமாலையாலும் ரத்னங்களாலும் பொன்னாலும் அலங்கரிக்க பெற்றவனாகவும் கௌஸ்துபமணியை புகந்து ஏற்றுக்கொண்டவனும் லக்ஷ்மியான ஸ்ரீதேவியாலே நித்தியவாசம் செய்யப்பெற்ற பெரிய பச்சை மாமலை போல் திருமேனி உடையவனும் உருக்கிய அபரஞ்சி தங்கம் போன்று அழகிய திருப்பீதாம்பரத்தை உடையவனாகவும், அதாவது தரித்தவனாகவும், அழகிய உருண்டு திரண்ட அகன்ற திருவடிகளில் அழகிய மேகலையாலும் சிலம்பாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும் தாமரை தண்டு போன்று அழகியதும் நீண்டு நெளிந்து ஒளிமிக்கதுமான, அதாவது யஜ்ஞோபவீதத்தை அழகாக ஒளிமிக்கதுமான யஜ்ஞோபவீதத்தை உடையவனும் அணிந்தவரும் திருக்கரத்தை தனக்கு தலையணையாக கொண்டவனுமாக மற்றொரு திருக்கரத்தை நீட்டி வைத்து கொண்டிருப்பவனுமாக ஒரு கழித்து சயனத்திலே தனது திருவடி இணைகளை பக்தர்களுக்கு காட்டி, அதாவது சயன கோலத்திலே, அதாவது மூலவரின் கோலத்தை இவ்விடத்திலே சாதித்தருளியுள்ளார் சுவாமி தேசிகன். உயர்ந்த அலங்காரத்தை உடையவனும் கைங்கரியத்திலேயே அழிந்திருக்கும் ஆதிசேஷனை படுக்கையாக கொண்டவனுமான உயர்ந்த புருஷனை உத்தமனை பக்தர்கள் சேவித்து இப்பொழுது சேர்த்திலே எழுந்தருளியிருக்கும் பிராட்டிமார்களையும் பெருமானையும் சேவித்து அக்ஷதை பரிமாற்ற పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ